So dear students, we'll again start this differential equation where till we have seen order and degree. So I'm going some more problems of order and degree here. Correct? Now we'll take one more example. Look at this. Question 1 is, again we have to find order and degree of the differential equation. And the differential equation I am taking d2y upon dx square whole to the power 2 plus cos of dy by dx equal to 0. So we have to find the order and degree of this differential equation. So again, when we say we'll talk about order is clear here. It is going to be 2, and degree, since it is not a polynomial of difference dy by dx, so degree cannot not defined. Sometimes in this question some student they confuse, sir order is given 2 and degree also highest order 2 और 2 दिख रहा है तो degree 2 लिख दूं? No, never, because ये cos of dy dx आ गया ना, ये polynomial ही नहीं है. Can we say x square plus cos x quadratic equation? Never. You cannot say quadratic equation to this. This is not a equation in x also. Fine. So order is 2, fine, and degree is going to be not defined since it is not a polynomial of dy by dx. Fine here. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. पहला वीडियो आप अच्छे से देखिए, फिर सेकंड वीडियो लेक्चर को देखिए. कई बच्चे सेकंड पहले देखते हैं, फर्स्ट बाद में देखें तो कुछ समझ में नहीं आएगा. सो फर्स्ट वीडियो एंड देन सेकंड वीडियो. ये भी समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये भी समझिए. Look at this next problem. Now we have to tell the order and degree both in this differential equation. Differential equation is root sin x dx plus dy is equal to root cos x of dx minus dy. This is our differential equation. And we have to find degree and order. Degree चाहिए अपने को और order चाहिए. Correct dear? So in इस question को देखने पे अब आपको लग रहा है कि कुछ तो पहले तो differential equation form दिखना चाहिए. Then only we can get the answer of this. Correct? So how we will proceed this sum? First इसको differential equation हम बनाते हैं. वो कैसे possible है? Look at this. पहले तो आप इसको dx dy वाले कोफिशिएंट को एक जगह लिए. मैं रूट dx और dy को अगर एक साथ लूँ यहाँ से, चेक इट, तो मैं dy by dx डायरेक्टली अगर लिखूँ, दिस इज गोइंग टू बी रूट cos x माइनस रूट sin x, इट विल कम हियर, अपॉन रूट sin x plus root cos x. Correct? So this is the differential equation we will get. Fine. So dy dx equals to this came. Now इसके ऑर्डर और डिग्री को तो बड़ा सिंपल है, आप समझ जाओगे. तो ऑर्डर वी कैन से 1, and what about degree? Degree is also 1. Correct? So order is 1 and degree is 1 for this differential equation. Very simple. क्या इसमें इंपॉर्टेंट थे डियर? आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना था. इसके लिए आप dy को एक जगह कलेक्ट कीजिए, dx वाले कोफिशिएंट को एक जगह कलेक्ट किया, एंड देन dy by dx केम दिस. करेक्ट? एंड दिस इज पॉलिनोमियल इन dy by dx. ये सारे x के फंक्शन है. dy by dx में कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं है. ऑर्डर तो 1 हो गया और इसकी डिग्री भी 1 हो गई. ठीक है, चलिए we go to the next problem. I believe you understood this problem. Next problem is, again we have to find order and degree of the differential equation. See, I am taking the differential equation, which is d2y upon dx square whole to the power 5 plus 4 times of d2y dx square and whole to the power 3
अपॉन d3y अपॉन dx क्यूब प्लस d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, दिस इज व्हाट आर इक्वेशन. नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री. करेक्ट, हमें ऑर्डर और डिग्री चाहिए इस इक्वेशन का. तो अब आप इक्वेशन को देख लें. इस इक्वेशन में आपको क्या कर सकते हैं, कैसे होना है, इसको समझिए. पहले तो ये जो डिनोमिनेटर में है d3y बाई dx क्यू, ये टर्म, लुक एट दिस, ये टर्म दिख रहा है, इसको आप एलसीएम ले लो. एलसीएम लेने के बाद ये क्या सिचुएशन होगी डियर, d2y dx स्क्वायर होल टू द पावर 5 इंटू d3y dx क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ d2y dx स्क्वायर whole to the power 3 plus this becomes d3y upon dx cube whole square is equal to x square minus 1 into d3y by dx cube. Now ये differential equation clear दिख रहा है, there is no denominator now. ठीक है, अब यहाँ से हम ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं. करेक्ट, अब देयर पूरे इक्वेशन को देखिए. ऑर्डर हम पहले कैलकुलेट करेंगे. तो आप में इसमें ऑर्डर d3y ही मैक्सिमम दिख रहा है. यस, ऑर्डर इज 3. कंफर्म, ऑर्डर तो 3 है. नाउ डिग्री, व्हेन वी से व्हाट इज गोइंग टू बी डिग्री हियर, कोई भी पावर रैशनल में नहीं है, दैट इज गुड. तो अभी डिग्री जिसका ऑर्डर ज़्यादा है उसके ही पावर को लेंगे हम. ठीक है, तो आप देखें d3y dx क्यू में दिस टर्म कैरीज a maximum power which is 2. ठीक है, सो डिग्री हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, 2. फाइन, लुक एट दिस, हियर d3y dx क्यू को 1 पावर है, यहाँ पे भी d3y dx क्यू को कितनी पावर है, 1 ही है, और यहाँ पे d3y dx क्यू को कितना पावर, 2 है, इंडेक्स 2 है ये. तो डिग्री इज 2 एंड ऑर्डर बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी 3. ठीक है डियर, सो this way we have taken couple of example based on order and degree. तो आपको केयरफुल रहना है, जहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है वो वाले क्वेश्चन को अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वाली सिचुएशन है तो क्यूबिंग कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए, एंड देन you can get the order and degree of the differential equation. In the previous video you had mentioned some of the question where square root and cube root was given. Correct? So with this sum I am entering in next part of differential equation. See dear, पूरी differential equation जो है, differential equation को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं जो एनडीए में पूछी जाती है. पहला होता है ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री निकालना, ये एक क्वेश्चन होता है. सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है. थर्ड पार्ट आता है डियर सोल्यूशन. सिंस इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन होगा. सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन निकालना सीखेंगे. ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एनडीए में पूछी जाती है. ऑर्डर डिग्री एक क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन, एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन. तो समटाइम्स सोल्यूशन से मोर देन 1 क्वेश्चन भी आता है, 2 भी आ सकता है, फॉर्मेशन से भी 2 आ सकता है, ऑर्डर डिग्री तो 1 या 1 ही मैक्सिमम होती है. तो समवेयर टोटल अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से देखी जाए तो देयर विल बी 3 to 4 क्वेश्चंस इज देयर. ठीक है, 10 मार्क का सम आपको रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से. और बोर्ड में भी आपको 12th बोर्ड में भी ये टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. एट द एंड आप देखो अपने टेक्स्ट बुक में तो यू विल बी एबल टू सॉल्व बोर्ड के बुक्स के भी क्वेश्चन कर सकते हो वंस यू गो थ्रू माई इंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियोस. सो अभी वी हैव जस्ट डिस्कस ऑर्डर एंड डिग्री. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे एंटर करते हैं विच इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, हाउ वी कैन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन डियर. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है, व्हाट आर द कंडीशंस, सो दैट वी विल डिस्कस नाउ. लुक एट दिस. फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है. अब फॉर्मेशन में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट इज, एक टर्म होता है, इसमें समझना है अपने को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये फंक्शन में होता है, कर्व में होता है. ये कांस्टेंट का मतलब, और प्लेन कांस्टेंट जो कहते हैं हम, कांस्टेंट किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट, दो टर्म कांस्टेंट के टाइप होते हैं डियर. लेट्स से मैं अगर एक इक्वेशन लिखूं, you have seen in your physics also this equation, a sin omega t plus phi, correct. अगर मैं ये क्वेश्चन लूँ, 1 minute देर, एक अर्जेंट कॉल है, आई एम जस्ट टेकिंग, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ. हेलो, हाँ सर बोलिए. हाँ बोलिए ना सर, बोलिए. क्या सर? हाँ 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 हाँ, यस, हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर. हाँ 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 हाँ, तो देता हूँ, ठीक है, चलेगा चलेगा सर, ठीक है, चलेगा सर, चलेगा. ओके सर, ओके. हाँ हाँ, भेज दो. So there, I was talking this arbitrary constant and constant. So इस यहाँ पे आप देखो, आर्बिट्री कांस्टेंट कांस्टेंट, इस इक्वेशन में ये a जो दिख रही है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ये जो ओमेगा है दिस इज आल्सो कांस्टेंट, फाई इज आल्सो कांस्टेंट, फाइन. सो ये कांस्टेंट का रोल प्लेन कांस्टेंट की तरह है, बट दिस a इज योर नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, लेट्स से एक और एग्जांपल ले लूं मैं. a इक्वल्स टू a साइन 3x प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस 3x. ठीक है, तो अब इस फंक्शन में कर्व में देखो, a और b जो है दिस इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये जो 3 दिख रहा है ये प्लेन कांस्टेंट है. ठीक है, सो ये आपको अच्छे से समझ के लेना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और प्लेन कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है. कई इक्वेशन में आपको, कई फॉर्मेशन करते समय ये आपको दिखेगी, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन में भी मेंशन कर देते हैं कि दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. लेट्स से मैं एक क्वेश्चन, एक कर्व लिया, y इक्वल्स टू a साइन qx प्लस b cos क्यूब x प्लस c. ठीक है, ये 3 लिखा. अब इस कर्व में a, b और c ये तीनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए. these all a b c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. अगर मैं यहाँ पे, अगर इसी इक्वेशन में इस b के जगह 2 कर देता, केवल 2, सो a cos sin qx प्लस 2 cos qx प्लस c, देन हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं, वी हैव 2 ओनली, a एंड c. ठीक है, सो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्लियरिटी होनी चाहिए. ये अगर हमें समझ में आ गया तो फॉर्मेशन बिकम्स सिंपल डियर. ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डिफरेंस. ठीक है, चलिए अब इसका रोल क्या है. क्या होता है कि जिस फंक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उस फंक्शन को हम उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं.
जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ, तो आई हैव टू आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी, तो इस फंक्शन को हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2 टाइम्स वी हैव टू डिफरेंशिएट कंपल्सरी, एक टाइम में नहीं, 2 बार, और 2 बार डिफरेंशिएट करके इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। क्या करना होता है? एलिमिनेट करते हैं, यानी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखने चाहिए। अगर मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो समवेयर लुक एट दिस, मे बी ऐसा मिल जाएगा अपने को, ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, ऐसा। तो लुक एट दिस, वी डोंट हैव ए एंड बी हियर, ए और बी तो नहीं है। तो यही हमारा फॉर्मेशन का पर्पस है। तो हमें फंक्शन को देखना होता है कि उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो उतने टाइम्स आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर वो कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाता है। लेट्स से लुक एट दिस, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू सी प्लस सी बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? वी हैव 1 ओनली आर्बिट्री कांस्टेंट, a इक्वल्स टू 1, c और c है, एक ही है ना, c और c सेम है, तो वी हैव 1 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो मैं इसको इस फंक्शन को केवल वन टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट, ओनली वन टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट, और वहां से मुझे c को अलग करना होगा। लेट्स से मैं इसको करके दिखाऊं आपको, dy बाई डी एक्स, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, c 0 एंड माइनस c अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ से आप c कैलकुलेट कर लीजिए, c कितना आ जाएगा डियर, c इज गोइंग टू बी माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब इस c की वैल्यू हम वापस इस इक्वेशन में डाल देंगे। सो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस c है तो ये हो गया माइनस x dy बाई डी एक्स। लुक एट दिस, देखो देयर इज नो c, ये जो है इक्वेशन जो बना, दैट इज व्हाट फॉर्मेशन एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन। इनफैक्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन भी होता है, ये सोल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल का, और इसी सोल्यूशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। तो हमें जो फॉर्मेशन में करना है, दैट वी हैव टू डू, सोल्यूशन से फॉर्म करना होता है, और आर्बिट्री कांस्टेंट देख के उतने नंबर ऑफ टाइम्स को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर इस आर्बिट्री कांस्टेंट c को एलिमिनेट कैसे किया, ये वैल्यू c की हमने वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी डू इन फॉर्मेशन डियर, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो हमें इक्वेशन के अंदर क्या क्या करना होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट पहचानना है, आर्बिट्री कांस्टेंट के बाद 2 आर्बिट्री है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार आर्बिट्री कांस्टेंट करेंगे, करेक्ट, एंड देन वी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, और जो फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। सो डियर विल गो टू आवर नेक्स्ट, विल सी, इंफॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे, ठीक है। तो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट की बात करी फॉर्मेशन में, जो हम आई बिलीव आपको समझ में आया, और समझ के लीजिए आर्बिट्री कांस्टेंट, आप प्रॉब्लम में भी आपको और क्लियरिटी होगी। लुक एट दिस, सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लुक एट दिस, now we have to form the differential equation. Question, it is given, look at this, some problems I am taking here where we have to form the differential equation. See, one question I am taking, y equals to इसको अपने को फॉर्म करना है, a into 3x plus b into e to the power minus 3x, correct. Now we have to form differential equation. So now we have to form the differential equation for this. So here what we observed, a and b, 2 arbitrary constants,
so we'll have to differentiate twice to this function. इसको इक्वेशन 1 कर दिया, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dy by dx a कांस्टेंट रह गया, डेरिवेटिव ऑफ e to the power 3x इज 3 into e to the power 3x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, e to the power minus 3x को जब डिफरेंशिएट करोगे आप, b कांस्टेंट है, b into 3 e to the power minus 3x, ठीक है। ये हमने पहला डिफरेंशिएट कर लिया, और अपने को क्या बोली गई है, कम दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस। अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस d2y dx square, so what will happen there, this is going to be 9a e to the power 3x and this will become plus 9b e to the power minus 3x. now 9 में अगर यहाँ से कॉमन लूँ, so I have a e to the power 3x plus b e to the power minus 3x, ठीक है। ये पूरा टर्म क्या है अपने को, y है, so can we write here 9y, look at this, arbitrary constant eliminated, a or b is not no more now in the equation, so equation we have d2y dx square is equals to 9y, or you can say d2y dx square minus 9y equals to 0. This is the differential equation of this solution. In fact, this curve y equals to a into 3 e to the power 3x plus b into e to the power minus 3x का, इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को क्या मिला, दिस वन, करेक्ट। सो डियर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा ये कुछ, बिकॉज आई एम गेटिंग सम अर्जेंट कॉल राइट नाउ, सो ये वीडियो थोड़ा छोटा ही है, तो आई डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो अभी जस्ट मैं इस वीडियो को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉल इज देयर इन फोन, सो आप यहाँ तक गो थ्रू करो एंड विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो डियर, करेक्ट। सो आज थोड़े ये बेयर कीजिए, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग प्रॉब्लम करता हूँ।